Next topic, that is JEE. For sets and relations we will discuss today. For functions we will discuss tomorrow. Now we have already studied sets and relations in boards. ठीक आहे, त्या ठिकाणी बरेचसे आपण पॉइंट्स क्लिअर केलेले आहेत. वेगवेगळे फॉर्म्युले असतील रिलेटेड टू सेट्स और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स. ठीक आहे, म्हणजेच एन ए, एन बी, एन सी त्यांचे काही फॉर्म्युले आहेत ते सगळे असणारच आहेत. अलॉंग विथ दॅट let us discuss some points which are not discussed in boards. ठीक है, so one by one. Sets. Now representation of a set. Representation of a set. Now we know that it can be done by two ways. Either listing or roster method, and second is set builder form. So you can write down a set using these two methods. ठीक. Then this roster or listing method is also called as tabulation or enumeration method. In this case, we are expressing a set in curly bracket and the elements are separated by the comma. So that is the roster or listing method. तो ये हमने यहाँ पर क्यों डिस्कस किया? Because sometimes ये भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि tabulation में या enumeration में देखिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि tabulation and enumeration is nothing but it is roster or listing method. Second, set builder form or set builder method is also known as rule method or property method. So here we are expressing the elements of a set by certain rule or by certain property. Let us say set of natural numbers, set of real numbers. So in that way. Next thing, cardinal number or order of a set. I already know what is the cardinal number. Cardinal number NA is nothing but number of elements in the set A, and it is also called as order of that particular set. So OA, that is order of set A, is again it is also equal to number of elements in the set A. So here it is 1, 2, 3 elements. So NA or OA is equal to 3. Let us discuss subsets. So there are two types of subset basically, proper subset or improper subset. Proper subset हम किसे बोलेंगे? So A is a subset of B, but A is not equal to B. Then it is called as a proper subset. That is A is a subset of B. आप देखेंगे सबसेट लिखते समय हम यहाँ पर एक साइन और देते हैं, एक लाइन देते हैं नीचे, that is the sign of equality. ठीक है, तो अगर इक्वालिटी नहीं होगी, जस्ट वी कैन अज्यूम कि जैसे हम लेस देन में देखते हैं, लेस देन वाला सिंबल हमारा इसी तरीके का होता है. ठीक है, लेस देन. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इन दिस केस, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी. ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट्स इन ए आर कंटेन्ड इन सेट बी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए सबसेट ऑफ बी. So this is the proper subset. And what is the improper subset? Here also A is a subset of B, but A is equal to B. ठीक है, A is equal to B. तो obviously number of elements in A is equal to NA equal to NB भी होगा. ठीक. Now we know that every set is a subset of itself. ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी, मैंने बताया था आपको. Every set is a subset of itself, and second phi, that is the empty set, is a subset of every set. जस्ट एक आपको एग्जांपल भी दिया था कि एम्प्टी सेट मींस ही इज हैविंग नथिंग इन हिज पॉकेट. ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ही हैज टू वर्क फॉर ऑल द पीपल. जैसे हम एक सर्वेंट का रिलेशन अगर देखें तो, और चाहे सबसेट ए हो चाहे करोड़पति हो, ठीक है, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वट एवर, बट देन ही इज अ सबसेट ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है, हर आदमी को अपना काम तो खुद से करते आना ही चाहिए, भले उसके पास कितने भी एलिमेंट्स हो चाहे कितने भी सर्वेंट्स हो इन अदर लैंग्वेज. ठीक. सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. सो दीज टू पर्टिकुलर सेट्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज इम्प्रॉपर सबसेट्स. सो टू इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर phi and A. नेक्स्ट थिंग, यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट हमें मालूम है, सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट, एंड इट इज आल्सो डिनोटेड बाय दीस 4 लेटर्स. हमें यू और एक्स तो मालूम था,
यहाँ पर हमने लिया ओमेगा, ठीक है। ये किसका सिंबल है, ये सिंबल बताइए। ये जो फर्स्ट सिंबल लिखा हुआ है ये फिजिक्स में किस चीज का सिंबल है? यस, इट्स ओहम एंड इट इज यूनिट ऑफ व्हाट? फिजिक्स की बात करते हैं, मैथ थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, फिजिक्स के लिए पूछ रहा हूं मैं। ओहम है बराबर है एंड इट इज यूनिट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी? फिजिक्स का नॉलेज टेस्ट का, यस यस करेक्ट अपेक्षा, करेक्ट। इट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी गुड। ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। बट बेसिकली सी ओहम इज व्हाट? ओहम इज अ साइंटिस्ट, ठीक है। ओहम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू U अपॉन R। सो ओहम इज व्हाट? इट इज अ साइंटिस्ट। तो उसके नाम से ये सिंबल, हम रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उसके नाम पर दिया गया है, बट सिंबल वी आर यूजिंग दिस टाइप, दैट इज ओमेगा। देन कैपिटल S, that is also for universal set, capital U, capital X. So all these are symbols or denotions for universal set. Now let us discuss operations on set. First one is union of sets. Now what do I say? Union means all the elements. ध्यान में रखिए हमेशा, union means all the elements. Intersection means common elements. ठीक है, union means all the elements in A or B or both. A में होने वाले, B वाले और A और B दोनों में होने वाले सारे एलिमेंट्स, they are union. So union is expressed like this: A union B or A plus B, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। So union is nothing but addition of all the elements. So that's why जहां जहां पर R आएगा हम इसे A और B भी बोलते हैं। This is also treated as, अगर और इसे थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई करूं, so this can be also written as A or B union, A or B. That means the elements belongs to either A or B or both. दोनों में भी हो सकता है। So union of set is given by A union B, A plus B, A or B. Clear? It is read as A union B or A join B. ठीक है, कुछ नई टर्म्स यहाँ पर है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। A join B, so it is nothing but A union B. Now let us say A1 union A2 union A3 up to union AN. So it can be denoted by union I is equal to 1 to N AR. ठीक है, तो I की वैल्यू 1 2 3 लेकर के सबका आपको लेना है यूनियन in this way. Next, intersection of sets. It is denoted by A intersection B, A into B, or you can say it can also be denoted as A and B. हम probability पढ़ने वाले आगे, तो probability में एक concept आएगा, sets and probability are interrelated. ठीक है, तो A और B अगर होगा तो it is union A and B, मतलब अब जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला एलिमेंट A में भी है और B में भी है, एंड बीच में जो एलिमेंट A एंड B दोनों में है, ठीक। सो इट इज सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन A एंड B, denoted as A intersection B or A into B, and this is also read as A meet B. Google Meet, A meet B, यहां पर क्या है? A join B। कॉम्पिटिटिव में कभी अलग लैंग्वेज में भी आते हैं, तो इसलिए ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट मतलब अगर किसी भी दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज ए डिसजॉइंट सेट। सो हियर आई हैव रिटन डिसजॉइंट सेट मींस नो कॉमन एलिमेंट्स, then it is called as a disjoint set. A intersection B is equal to set of phi is equal to empty set phi, denoted like this. It is an empty set or null set or void set. So A and B are called as disjoint, or अब ये एक चीज ध्यान में रखने वाली है,
A and B are either disjoint or mutually exclusive sets or events. ये जो वर्ड है आपने प्रोबेबिलिटी में देखा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स और इवेंट्स A and B, such that their intersection is phi. Let us say set A is a set of all the fruits. ठीक है, सेट A is a set of all the fruits, सारे फ्रूट्स का सेट है. सेट B is a set of all the toys. All the toys. तो दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या? टॉय फ्रूट नहीं हो सकता, फ्रूट टॉय नहीं हो सकता. ठीक. Then this type of events are called as mutually exclusive event. Next is symmetric difference of sets. It is given like this: A symmetric difference B, और ये भी एक तरीका है, A symmetric difference B. किस तरीका सिंबल है? सर्कल में एडिशन का साइन है. So this sign is also used for denoting symmetric difference. And what is symmetric difference? A B, it is given by A minus B union B minus A. अगर मैं इसे सेट्स में दिखाने की मतलब वेन डायग्राम में अगर हम शो करते हैं, इस तरीके से, तो यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है. एंड व्हाट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी? इट इज ए माइनस बी. अब ए माइनस बी कौन सा एरिया हुआ? दिस एरिया इज ए माइनस बी, ये वाला. ठीक. यूनियन बी माइनस ए. बी माइनस ए कौन सा एरिया हुआ? राइट हैंड साइड वाला. बी में से आपको ए हटा देना है. ये कंप्लीट बी है, उसमें से ए हटा दिया, तो दिस इज बी माइनस ए. ठीक है. सो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इन दोनों की एडिशन. मैं एडिशन वर्ड क्यों यूज करता हूं? देखिए यूनियन के लिए यहाँ पर इन दोनों की एडिशन. अच्छा, बीच में जो है ये क्या है? दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. कॉमन एलिमेंट्स हो गए. सो ये दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज, और सिमेट्रिक डिफरेंस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज कंप्लीट ए यूनियन बी. आपने पूरा ए यूनियन बी लिख लिया, ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले और ये वाले सारे, और उसमें से आप माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन. ये यूनियन बी, ठीक है, यहां पर हो जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. यहां पर यूनियन मैंने इंटरसेक्शन लिखा था गलती से, तो एक बार ये स्क्रीनशॉट डबल ले लीजिएगा. ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. कंप्लीट यूनियन लेंगे, उसमें से इंटरसेक्शन हटा देंगे, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, व्हिच इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. अब जितने भी ये सारे फार्मूले हैं, है ना, बहुत सारे फार्मूले दिखते हैं एबीसी के और एन ए एन बी एन सी के, तो कुछ आप जरूर लर्न करिए जो एग्जांपल्स में आएंगे, और बाकी जो है आप वेन डायग्राम से अच्छे से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. पहले भी हमने डिस्कस किया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो उससे आपको अच्छे से लर्न भी होगा. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट इज गिवन लाइक दिस, ए डैश और ए सी. सो इट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट, एंड इट इज यू माइनस ए. यू माइनस ए मतलब जो यूनिवर्सल सेट है, इसमें से अगर आप सेट ए को निकाल देंगे तो बाकी जो भी बचेगा इट इज ए कॉम्प्लीमेंट. So set of all elements in U which are not in A, then it is A complement. Just for example, एक यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. हमने सेट A ले लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स. तो जो A कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? इंग्लिश अल्फाबेट्स में से वॉवेल्स निकाल देंगे, तो क्या बचेंगे आपके पास? कंसोनेंट्स. ठीक है, तो आपके पास बचेंगे कंसोनेंट्स. सो इट इज नथिंग बट A कॉम्प्लीमेंट. So this is all about sets. फार्मूले एक बार थोड़े से फार्मूले आप रिवाइज करेंगे, and then we will be able to solve the question based upon this. Now, let us discuss relation. Now, relations, it is also called as a binary relation. ठीक है, it is also called as a binary relation. But generally, or in particular, by relation
is given by only binary. Binary means related to two terms. आप कंप्यूटर में पढ़े होंगे, ठीक है, कंप्यूटर आईटी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम होता है. व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? देयर आर ओनली 2 डिजिट्स. कौन से 2 डिजिट होते हैं? 0 and 1. दैट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम. हम जो यूज करते हैं इट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में देयर आर 10 डिजिट्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेसिमल. 10 डिजिट्स. और 10 डिजिट्स कौन से? ऐसा अगर पूछा जाए, ये पूछा जाता है, इंजीनियर्स को भी पूछते हैं, मतलब पर्टिकुलरली कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये जो ब्रांचेस है इसका जो इंजीनियरिंग करते हैं अगर इंटरव्यू देंगे, अगर उनको पूछा जाए डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स कौन से होंगे 10, तो बस सारे मोस्ट, मतलब एक कॉमन मिस्टेक जो होता है यही बोलते हैं सर 1 2 3 4 अप टू 10. नो, इट इज नॉट ट्रू. डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं दे आर फ्रॉम 0 to 9. 0 1 2 3 4 अप टू 9. सो देयर आर टोटल 10 डिजिट्स. जैसे आप लोग होशियार है, आपको मालूम होगा. अब ऐसे ही आप में से जो लोग कंप्यूटर साइंस अभी भी शायद 11-12 के सिलेबस में है, नहीं है, होगा 11-12 के सिलेबस में भी होगा. बाइनरी हमने डिस्कस किया, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1. डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9, 10 डिजिट्स. वैसे होता है ऑक्टल, ठीक है. ऑक्टल मीन्स देयर आर 8 digits in that octal number system. They are from 0 to 7, not 8. 0 to 7, ठीक है. वैसे होता है हेक्साडेसिमल, जिसमें कि आपका 16 डिजिट्स होंगे वहां पर, ठीक. सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज द डिफरेंट नंबर सिस्टम्स. तो हम बाइनरी की बात करें, दिस इज अ बाइनरी रिलेशन. सो रिलेशन इज ऑलवेज एक्सप्रेस और इट इज गिवन फॉर 2 थिंग्स, 2 एलिमेंट्स, 2 मेंबर्स ऑफ ए सेट, ठीक. जैसे मेरा और आपका एक रिलेशन है स्टूडेंट टीचर का. सो वी आर टॉकिंग 1 to 1. लेट अस से myself as a teacher and Mandar as a student. Myself as a teacher Pranav Chandankar, Pranav Chaudhary, Achal, Apeksha. So that is 1 to 1 pair for a relation, ठीक है. So that's why it is called as a binary relation. Now R from set A to set B is a subset of A cross B. So this every relation is a subset of Cartesian product A cross B. A cross B हमें मालूम है, हमने निकाला हुआ है. A cross B, that is Cartesian product, is nothing but set of all the ordered pairs, ठीक है. तो उसमें से कुछ भी पेयर्स आ जाते हैं, then it is called as a relation. So it is always a relation from set A to set B is a subset of A cross B. That is denoted like this. R is a subset of A cross B. अब कभी कभी क्या होता है, relation on A. So there is a relation between one set only. There is a relation between one set only, and it is given by R is a subset of A cross A. So this is also a relation which is on a single set. ठीक. जस्ट एक सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं. अगर मैं बात करूं सेट A और सेट B. So set A is let us say of teachers. Set B is let us say of students. So there may be different students, ठीक है. यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे. इधर टीचर्स भी बहुत सारे होंगे, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, मैथ्स के अलग, केमिस्ट्री में और एक होता है, ऑर्गेनिक के अलग, इनऑर्गेनिक के अलग, बायो में भी वैसा कुछ होता है, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टीचर्स कंटेन्ड इन दिस सेट. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ रिलेशन, देन इट इज a relation from set T to set S, ठीक है. मतलब A to B हुआ. और ये जो सारे टीचर्स है, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर, दे मे बी ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर. एक दूसरे के कलीग्स हो सकते हैं, इन्हें कलीग्स बोला जाता है, ठीक है. सो दे आर कलीग्स ऑफ ईच अदर. तो इस पर्टिकुलर सेट में मतलब कि A क्रॉस A, इसके जितने भी सबसेट होंगे उन सबसेट में से बनेगा आपका रिलेशन R, and it is called as relation on A, that is on a single set, and this is relation from A to B on 2 sets. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगेन, जहां पर हम बोलते हैं ना कि कॉमन मिस्टेक, सिली मिस्टेक होने के जहां पर चांसेस होते हैं. सो इट इज दिस. लेट अस से NA इक्वल टू M, NB इक्वल टू N. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A M है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B
n है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू mn। ठीक है, m इंटू n होते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। नो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे फिर, बिकॉज रिलेशन इज व्हाट, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 2 रेज़ टू mn। अच्छे से ध्यान में रखना है। इट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू mn। शायद बेस्ड अपॉन दिस एक क्वेश्चन भी था, हमने अभी जो टेस्ट लिया सेट्स एंड रिलेशंस का बोर्ड का, उसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था। अभी चेक नहीं किया मैंने, पता चलेगा अभी किस किस का आंसर करेक्ट है, किसका आंसर गलत है। ये एमसीक्यू टाइप दिया था, जस्ट सिंपल आपको आंसर देना पड़ा। तो ये वाला एक चीज है। नेक्स्ट इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन आर इनवर्स, ठीक है, इनवर्स रिलेशन इज फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। सेट ए से सेट बी में रिलेशन होगा तो सेट बी से सेट ए में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। सो ऑब्वियसली डोमेन ऑफ सेट आर, अब डोमेन और रेंज आपको मालूम है। डोमेन मीन्स व्हाट, एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर सेट ए इधर सेट बी, ठीक है, ऐसे जो कनेक्टेड है इट इज आर, और जो ऐसे कनेक्टेड है इट इज आर इनवर्स। ठीक, अब जब हम आर की बात करते हैं, आर की, तो डोमेन मतलब सेट ए के एलिमेंट्स, और रेंज मतलब सेट बी के एलिमेंट्स। ठीक, अब जब हम आर इनवर्स की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। आर इनवर्स में क्या होगा, डोमेन मतलब सेट बी, रेंज मतलब सेट ए। So they are inverse of each other. So that's why domain of R is equal to range of R inverse, and range of R is equal to domain of R inverse. एक दूसरे के इनवर्स है तो डोमेन और रेंज उनका इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, देन लेट अस सी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, R on A such that R is equal to A cross A। तो हम एक सिंगल सेट की बात कर रहे हैं, कौन सा सेट, ए, और उस सेट ए में हमें मालूम है कि रिलेशन ऑन ए इज गिवन बाय व्हाट, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। लेकिन अगर आपके रिलेशन में ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए अगर रिलेशन में होंगे, देन इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल रिलेशन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देखो मेरे पास कम है बट फिर भी चलिए फिगर रहने दो। लेट अस से A इज इक्वल टू AB, ठीक है, तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा, पहले तो A का पेयर बनेगा A के साथ, फिर A का पेयर बनेगा B के साथ, फिर B का पेयर बनेगा A के साथ, और फिर B का पेयर बनेगा B के साथ। सो दिस इज A क्रॉस A, ठीक है। और अगर मेरा रिलेशन ऐसा है, R इज इक्वल टू सेट ऑफ ए ए बी बी ए बी बी, ये रिलेशन हुआ। अगर इस टाइप का रिलेशन है देन दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिलेशन। फिर आप बोलेंगे सर रिलेशन तो हमेशा ऐसा आएगा, जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि R1 मतलब एक रिलेशन में ये भी लिख सकता हूं, R1 इज इक्वल टू सेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। वैसे R2 हो सकता है सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ना सॉरी ए कॉमा बी। सो दीज R1 R2 R3 आर व्हाट, दे आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। So these are just relations, but this particular is a universal relation because here R is equal to A cross A. So that is called as a universal relation. अब एक होता है identity relation. What is identity relation? Let us say if A is equal to set of ABC, then identity relation on A, IA, मतलब क्या हुआ? Identity relation on A is equal to set of AA, BB, CC, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर सेम, आर इक्वल यहां पर, देन दिस इज कॉल्ड एज ए आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट वन,
कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। हमने फंक्शंस में देखा है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी। सेट ए में लेट अस से एलिमेंट है स्मॉल ए, सेट बी में स्मॉल सी, सेट सी में स्मॉल सी। नाउ देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी given by capital R. There is a relation from B to C given by capital S. Then there must be a relation from A to C given by S O R. So it is S of R. S of R. So that is called as a composite relation. So in this case, as you can see, R is a subset of what? A cross B. S is a subset of B cross C. और जो ये S O R है, it is a subset of A cross C. Then this type of function is called as a composite function नहीं बोलेंगे, relation की बात कर रहे हैं हम. So this type of relation is called as a composite relation. S O R, S of R. ठीक, मान लीजिए अगर सेट A में यहाँ पर ए हो गया ए बी, इधर हो गया बी सी, देन देयर इज रिलेशन एस ओ आर बिटवीन ए एंड सी। कंपोजिशन का मैंने कंसेप्ट भी आपको बताया था, म्यूचुअल फ्रेंड वाला कंसेप्ट, फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड, दैट इज ए म्यूचुअल फ्रेंड। और कंपोजिट फंक्शन बोलिए, कंपोजिट रिलेशन बोलिए। क्लियर? सो दिस इज अबाउट सेट्स एंड रिलेशंस। अब कुछ डाउट है क्या इसमें? यहाँ तक कुछ पूछना है, कुछ बताना है इन जनरल, व्हाटएवर?